اسلام آباد سمیت راولپنڈی اور گردنواہ میں وقفے وقفے سے بارش، میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ضلع بٹگرام اور نواحی علاقوں میں رات بھر سے شدید برف باری، جنوبی وزیرستان اپر کے بالائی علاقوں بدر، جلندر، کانی گرم، کاروان، منزہ، لدہ، مکین اور شاوال میں بھی شدید برف باری، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کے دوسرے اسپیل کا سلسلہ جاری، مری کے پہاڑوں نے ایک بار پھر برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ اب تک 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ شدید برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ اور معمولات زندگی متاثر ہیں۔ مضافاتی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی جزوی طور پر متاثر ہوا۔ مری شہر کے تمام راستے کلیئر ہیں۔ ریسکیو 1122 کی سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد مری ڈوئل کیرج وے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھلا اور فعال۔ N55 کچلاک مسلم باغ سیکشن ہلکی اور درمیانی برف باری کے باوجود شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال۔ N55 یوب پر کیمپ نمبر 1 سے 4 تک برف ہٹانے کا آپریشن جاری، سڑک پر نمک پاشی مکمل۔ N25 شیلا باغ کوجک ٹاپ چمن سیکشن پر بھی برف ہٹانے کا آپریشن جاری۔ لک پاس سیکشن N25 پر برف ہٹانے کا عمل جاری، ٹریفک کی روانی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ شدید سردی اور برف باری کے دوران تمام ایمرجنسی کیمپس ہائی الرٹ پر ہے۔ NHA پاک افغان بارڈر پر شدید برف باری کے باوجود پاک فوج اور FC بلوچستان نارتھ کے جوان الرٹ، سخت موسمی حالات اور منفی درجہ حرارت میں بھی دفاع وطن کے لیے چاق و چوبند، کسی بھی در اندازی یا غیر قانونی سرگرمی روکنے کے لیے ہر لمحہ تیار۔ پاک فوج اور FC بلوچستان کی پیشہ ورانہ وابستگی اور قربانی قوم کی امن و سلامتی کی ضمانت۔ قوم کا اپنے محافظوں کے عزم، حوصلے اور قربانیوں کو سلام، جو ہر موسم اور ہر حالت میں وطن عزیز کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہیں۔ برف کی چادر کو سر پہ اوڑھے، یہ کون سب کو بچا رہے ہیں، جو سینہ تانے قدم بڑھاتے اجل سے نظریں ملا رہے ہیں۔ ISPR نے نیا نغمہ جاری کر دیا، فوج پاکستان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ شدید موسمی حالات، برفانی طوفانوں اور ناقابل برداشت سردی میں وطن کی سرحدوں کے دفاع اور مشکل میں گھری قوم کی خدمت میں مصروف افواج پاکستان کے عزم اور حوصلے، بے مثال قربانیوں کی داستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات۔ نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کی ہنرمندی اور استعداد کار میں مزید اضافے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی۔ وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی میں موجود۔ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پریزیڈنشل فلائٹ ٹرمینل پر UAE کے وزیر انصاف نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت UAE کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی و اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر مملکت کا دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین برادرانہ تعلقات اور شراکت داری کے عزم کا مظہر ہے۔ وفاقی حکومت کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم فیصلہ۔ DC اسلام آباد کسی بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے کی رپورٹ کا 7 دن کے اندر فیصلہ کریں گے۔ آپ کی جائیداد کے حقوق مکمل طور پر محفوظ ہوں گے۔ کسی کو بھی قانونی طور پر آپ کی ملکیت لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔
मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम पूरे मुल्क के लिए शुरू की। नौजवानों में मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। अब तक पूरे मुल्क में तलबा और तालिबात में लाखों लैपटॉप तकसीम किए गए। स्वाबी के तलबा दुनिया में अपना मकाम बेहतर बनाएंगे। लैपटॉप से नौजवानों का मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी में तकरीब से खिताब। SIFC की मौसर हिकमत अमली ने पाकिस्तान को सियाहत के नए मौके और तवज्जो का मरकज बना दिया। सियाहती इस्लाहात से पाकिस्तान जनूबी एशिया में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का पुरकशिश हब बन गया। मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म एक्सपो एंड फोरम का इनेकाद। हुकूमत सियाहत के जरिए मईशत के फरोग, रोजगार के मौके और मकामी कम्युनिटीज को तक़वियत देने के लिए कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर जिले अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट और पेड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का उसूली फैसला। स्ट्रोक के मरीजों के लिए फौरी तौर पर टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने और स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के लिए नर्सिस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। चाहते हैं कि किसी भी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। फॉलिज के इलाज की आगाही की मुहिम की खुद लीड करूंगी वज़ीर आला पंजाब। हुकूमत पंजाब की लाहौर में 6 ता 8 फरवरी महफूज बसंत की मशरूत इजाजत। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी भी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जखीरे, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार। ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त में मुलविस अफराद को 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत कराची में सिंध काबीना का इजलास। गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सानह गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी। काबीना ने 400 एकड़ के बजाय 100 एकड़ जंगलाती अराजी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर सानह कुपवाड़ा भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत का सियाह तरीन चेहरा। 27 जनवरी 1994 की तारीख भारतीय रियासती जबर की अलामत। काबिज फोर्सेस की पुरअमन और निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 27 अफराद की बेदर्दी से शहादत और दर्जनों जख्मी। आज भी मकबूजा कश्मीर के मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतजिर। सानह कुपवाड़ा भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की पामाली का दूसरा नाम है। भारत मजलूम कश्मीरियों के हक के खुदरादियत को कभी नहीं दबा सकता। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के हक में आवाज बुलंद करता रहेगा। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक, 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत मुतअद्दिद रियासतों में शदीद बर्फबारी और बारिश। बर्फानी तूफान के बायस अमरीका भर में 19,000 परवाजें मनसूख। दर्जा हरारत -31 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर गया। 44 रियासतों में 20 करोड़ अफराद को शदीद सर्दी के वार्निंग जारी। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। तालिबान रजीम का नाम नेहाद ताज़ीरी सजा से मुतालिक आइन साज दस्तूर अफगान अवाम समेत दुनिया भर ने मुस्तरद कर दिया। सजा से मुतालिक ज़ाब्ता कानून जुल्म और शहरी आज़ादियों को दबाने का हरबा है। सजा से मुतालिक दस्तूर के नताइज संगीन होंगे। सजा से मुतालिक ज़ाब्ता इंसानी वकार, शहरी मसावात और कानूनी इंसाफ की बुनियादों को पामाल करता है। नया ज़ाब्ता आमिराना नजरिया का आकाश है जो कानून को इंसाफ की बजाय समाजी कंट्रोल का जरिया है। कानूनी माहिरीन ICC T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज। कौमी T20 स्क्वाड का कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में वार्म अप सेशन और सिनेरियो बेस्ड मैच। ऑस्ट्रेलिया की टीम कल लाहौर पहुंचेगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। हरारे में ग्रुप 2 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। आज के दूसरे मैच में ग्रुप 2 से ही जिम्बाब्वे और भारत बुलावायों में मद्दे मुकाबल। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त।
बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात के बावजूद आईसीसी ने मैचेस भारत से मुंतकिल न किए। बांग्लादेश को ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके इवेंट मुतनाज़ बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। भारत में ना खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। और टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले जारी। आलमी नंबर 3 जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में ज़वेरेव ने अमेरिका के लर्नर टायर को 4 सेट्स में शिकस्त दे दी। His record against left-handers at the majors continues to be so. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले कुछ बात करेंगे मुल्क भर में जारी हालिया बारिशों और बर्फबारी के स्पेल के हवाले से। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बलाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के नए स्पेल से हर शय बर्फ में ढक गई है, जबकि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के साथ साथ मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के बारे में पेशगी अलर्ट कर दिया गया है। NDMA ने आवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रात से बारिश और निस्बतन ठंडे इलाकों कलात, ज़ियारत कान, मेहतरजई, मस्तोंग, कोयकटाप, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई और खानजई में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की खुसूसी हिदायत पर महकमा PDMA बलूचिस्तान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ज़िलाई इंतज़ामिया, FC बलूचिस्तान ने कौमी शाहराहों, राबिता सड़कों पर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। मुतालिका इदारों ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब की अपील की है। हालिया बारिशों और बर्फबारी से ज़राअत, लाइव स्टॉक और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहां बर्फबारी के दूसरे स्पेल का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मरी के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। अब तक 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि शदीद बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली का निज़ाम भी जुज़वी तौर पर मुतासर रहा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पोठा शरीफ में बारिश से एक कच्चे मकान की छत गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा हाईवे की मशीनरी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ़ है। मरी शहर के रास्ते क्लियर हैं, देही इलाकों की सड़कें ताहाल बंद हैं। एबटाबाद शहर में वक्फे से बारिश, जबकि गलियात, नथिया गली, उयूबिया, ठंडियानी के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया स्पेल जारी है। बर्फबारी के बायस एबटाबाद शहर शदीद तरीन सर्द हवाओं की लपेट में है। गलियात में 1 फुट जबकि ठंडियानी में 2 फुट तक मजीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस एबटाबाद से मरी और ठंडियानी जाने वाली मरकजी शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई हैं। बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होते ही नथिया गली, बकोट रोड और खेड़ाला अंदरसेरी रोड, बरी गली, सियालकोट पटन रोड समेत मुतादिद राबिता सड़कें ताहाल बंद हैं। बर्फबारी के बायस मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। इलाका में ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एबटाबाद की डिवीजनल और ज़िला इंतज़ामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा है कि मरी डुअल कैरेज वे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुली और फाल है।
N50 कुचलाक से मुस्लिम बाग तक सेक्शन में हल्की और दरमियानी बर्फबारी के बावजूद शाहराह ट्रैफिक के लिए खुली है। N50 यूब में कैंप नंबर 1 से 4 तक बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी है और सड़क पर नमक पाशी मुकम्मल कर ली गई है। N25 शीलाबाग से जोजक टॉप और चमन तक के सेक्शन में भी बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है, जबकि खोजक टॉप पर सड़क पर जमी बर्फ और फिसलन से बचाव के लिए नमक पाशी का अमल भी जारी है। लगपास सेक्शन N25 में बर्फ हटाने का अमल जारी है और ट्रैफिक की रवानी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। NHA ने बताया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी के दौरान तमाम इमरजेंसी कैंप्स हाई अलर्ट पर हैं। और पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी, सख्त मौसमी हालात और मनफी दर्जा हरारत में भी पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान वतन के दिफा के लिए चाको चौबंद हैं। सरहदी इलाकों में तैनात फौजी जवान मौसर निगरानी के जरिए किसी भी दरअंदाजी या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की ये पेशावराना वाबस्तगी और कुर्बानी कौम के अमन व सलामती की ज़ामिन है। कौम अपने मुहाफिजों के अज़्म, हौसले और कुर्बानियों को सलाम पेश करती है, जो हर मौसम और हर हालत में वतन अजीज़ के दिफा के लिए सीना सपर हैं। और ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। शदीद मौसमी हालात, बर्फानी तूफ़ानों और नाकाबिल बर्दाश्त सर्दी में वतन की सरहदों के दिफा और मुश्किल घड़ी में घिरी कौम की खिदमत में मसरूफ़ अफवाज पाकिस्तान के अज़्म और हौसले और बेमिसाल कुर्बानियों की दास्तान है ये। बर्फ की चादर को सर पे ओढ़े, ये कौन सबको बचा रहे हैं। जो सीना ताने कदम बढ़ाते, अजल से नजरें मिला रहे हैं। ये कौन सबको बचा रहे हैं। मुसीबतों में तुम्हारी नजरें, खुदा से मांगे सहारा उनका, वही तो हरदम तुम्हारी खातिर वजूद अपना मिटा रहे हैं। सबको बचा रहे हैं। शब का हमें रहेगा ख्याल सबका, हम अपने खूने जिगर से देखो चराग उल्फत जला रहे हैं। सबको बचा रहे हैं। हम अपने रब की रज़ाए पाकर हर एक महाज़े कठिन पे जाकर, जहाँ पे मरना नहीं था आसान, वहीं पे जीना सिखा रहे हैं। बर्फ की चादर को सर पे ओढ़े, ये कौन सा
मानसेहरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल रात गए से वक्फे से जारी है। वादी कागान, वादी सरन और वादी कोनश के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शुग्रा में 1 फुट से जायद जबकि कागान बाजार में 1.5 फुट के करीब बर्फ पड़ चुकी है, जिससे मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं और सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर हैं। वादी सरन और वादी कोनश के मुख्तलिफ इलाकों की कई राबिता सड़कें बर्फबारी के सबब बंद हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनरी सड़कें क्लियर करने में मसरूफ़ है और शाहराह कागान पर मकामी लोगों और सयाहों की रहनुमाई के लिए स्टाफ तैनात किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, हुंजा, नगर, स्कर्दू, शिगर और गिजर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात से अब तक स्कर्दू शहर में 3 इंच से ज़्यादा जबकि बालाई इलाकों में 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। गिजर और बालाई इलाकों बरसत, टेरो, फंडर, हुंदराब, गोपस, यासीन, दरकूत और बरसवात में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी के बायस बदस्तूर बालाई इलाकों का हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबिता मुनक़ते है। शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता ज़िले हेडक्वार्टर से मुनक़ते हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना रहा। शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में गुज़श्ता 18 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला जारी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं गुलजार शिगरी से। जी गुलजार, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है और गुज़श्ता 18 घंटों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बायस जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी के बायस शिगर तक स्कर्दू शाहराह जो है वो गुज़श्ता रात ब्लॉक हो गई थी, तहम बाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उसको बहाल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बल्तिस्तान डिवीजन के अजला स्कर्दू, शिगर, गांचे, खरमंग और अंदो में 2 रोज से बर्फबारी जारी है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से, जो इस वक्त स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं बर्फबारी के हवाले से आपके पास? जी, बल्तिस्तान डिवीज़न में 2 रोज़ से वक्फे से जारी शदीद बर्फबारी के बायस मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है। स्कर्दू शहर में अब तक तकरीबन 6 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। अब बर्फबारी का यह सिलसिला ज़िले स्कर्दू, शिगर, गांचे, खरमंग और रोंदो में भी जारी है, जहाँ सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। ख़राब मौसम के बायस स्कर्दू और इस्लामाबाद की परवाज़ें गुज़श्ता 2 रोज़ से मनसूख है, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस तरह बल्तिस्तान के बालाई इलाकों शिलार, डोरो, शिगर, शगरथंग, बाशे, खपलू, मशबरूम और दिगर पहाड़ी इलाकों के मुतादिद ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू और मोहल्लिका इलाकों में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि बालाई इलाकों में -12 तक गिर गया है। बर्फबारी और शदीद फिसलन के बायस ट्रैफिक के रवानी में नुमाया कमी देखी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से बल्तिस्तान डिवीज़न के तमाम अजला में आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा गया है। इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। जी। और जनूबी वज़ीरिस्तान नपर के बालाई इलाकों बदर, जालंधर, कानी गरम, कारवन मनसा, लद्दा, मकीन और शावाल में शदीद बर्फबारी हुई है। मकामी अमायदीन के मुताबिक इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला वक्ती तौर पर थम गया है, तहम रात गए तक जारी रहने वाली बर्फबारी के बायस पूरा इलाका शदीद सर्दी की लपेट में आ गया और कई अहम शाहराहें बदर रोड, कानी गरम, कारवान मंजा, जंडोला रोड और शावाल पश ज़ियारत मकीन बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक यामद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। बर्फबारी के नतीजे में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। शदीद सर्द मौसम और फिसलन के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के बायस बदर रोड, कानी गरम, कारवान मंजा, ताजंडला रोड और शावाल को पश ज़ियारत और मकीन से मिलाने वाली अहम शाहराहें ट्रैफिक यामद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस मकामी आबादी घरों तक महदूद होकर रह गई है, जबकि मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए। इंतज़ामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली के लिए हैवी मशीनरी रवाना कर दी गई है और बर्फ हटाने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है।
اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ مالم جبہ پاڑا چنار گوپس -7 بگروٹ -6 کالا مستور اور راولہ کوٹ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست کیا رہی۔ پہلے نمبر پر موجود ہے بھارتی دارالحکومت دہلی، جہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 258 ریکارڈ کیا گیا۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ رہا دوسرے نمبر پر، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس رہا 249۔ تیسرے نمبر پر ہے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 257 رہا۔ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے روس کا شہر کرانسویارسک، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 208 رہا۔ پانچویں نمبر پر سینیگال کا دارالحکومت ڈاکار رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 203 تھا، جبکہ ہنوئی رہا چھٹے نمبر پر، جس کا AQI 184 ریکارڈ کیا گیا۔ اور جڑواں شہروں میں رات سے جاری بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ تفصیل دیکھیے کنزا نقوی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، سرد ہواؤں نے خنکی مزید بڑھا دی۔ مارگلہ ہلز پر بادلوں کے ڈیرے، بارش کے باعث شہر بے مثال کی خوبصورتی مزید نکھر گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی برف باری کے باعث پہاڑوں نے ایک بار پھر برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ اب تک 8 انچ برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کے باعث معمولات زندگی بھی متاثر ہیں اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی جزوی طور پر متاثر ہے۔ محکمہ ہائی وے کی مشینری شاہراہوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہے۔ شہریوں کو برف باری کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں اور اب رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم۔ بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبروں کے جانب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کی ہنرمندی اور استعداد کار میں مزید اضافے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی۔ رانا مشہود احمد خان نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام اور بالخصوص لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلقہ امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران صدر مملکت متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ تفصیل عمر فاروق سے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان قریبی روابط مضبوط تعلقات کے عکاس ہیں۔ صدر آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح وفد بھی صدر مملکت کے ہمراہ ہے۔ دورے کے دوران صدر مملکت متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ صدر مملکت کی متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں تجارت، معاشی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوام سے عوام کے روابط کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا یہ دورہ حالیہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کے دورہ پاکستان کے بعد عمل میں آ رہا ہے۔ جو وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے 2011 میں لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا اور 2013 میں
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसे पूरे मुल्क के तलबा के लिए नाफिज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी में वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि अब तक लाखों लैपटॉप तलबा और तालिबात में तकसीम किए जा चुके हैं और इस साल भी 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने मुल्क की अफवाज की कुर्बानियों को भी उजागर किया और कहा कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया के बेहतरीन अफवाज हैं जिन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मेहनत और मेरिट के जरिए मुल्क की तकदीर बदलें और पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से हातमी फैसला जुमे या पीर तक हो जाएगा। एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई। उन्हें ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखते हुए मामला हल करने की हिदायत की और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हतमी फैसला जुमे या पीर तक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी खुशाइंद और काबिल कदर है। उनके असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनकी जायदाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SIFC की मौसर हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का पुरकशिश हब बना दिया है, जिससे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फहमी के बायस सियाहती सरगर्मियों में तेजी आ रही है। पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म एक्सपो एंड फोरम मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी को फ़रोग देना था। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी पाकिस्तान कैसर अहमद शेख ने कहा कि फोरम से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान तारीखी और सकाफती वर्से से मालामाल मुल्क है, जहाँ बेशुमार सियाहती मकामात और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी और आलमी शराकतदारी के लिए मुनाफे बख्श और पुरकशिश मौक़े फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सियाहत के ज़रिए मईशत को फ़रोग, रोज़गार के मौक़े और मकामी कम्यूनिटीज़ को तक़वियत देने के लिए इक़दाम कर रही है। SIFC की सहूलत की बदौलत ऑनलाइन वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तान को गैर मुल्की सयाहों के लिए पुरकशिश बनाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े IT फेस्टिवल ITCN एशिया 2026 में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने भरपूर शिरकत की। SCO ने जदीद टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज और IT स्टार्टअप्स को मौसर अंदाज में पेश किया। इवेंट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की क़यादत में उभरते IT स्टार्टअप्स खास तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टार्टअप्स की शमूलियत इलाकाई तरक्की में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार की अलामत है। DG SCO ने स्टॉल का दौरा किया और टीम की कारकर्दगी को सराहा। शुरुका ने SCO के खिदमात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। SCO के शराकतदारी नौजवानों की क़यादत में जद्दत और कनेक्टिविटी को पाकिस्तान की डिजिटल मईशत का महवर बना रही है। ITCN एशिया 2026 ने पाकिस्तान की आलमी टेक्नोलॉजी हब बनने की सलाहियत को दुनिया भर में साबित कर दिया है। पाकिस्तान और घाना के माबैन सियासी मुशावरत का पहला दौर घाना में मुनक्किद हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुशावरती इजलास में सियासी, माशी, दिफाई, सियाहती, सकाफती, सेहत, तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा दो तरफा सियासी मुशावरत और फ़ॉरेन सर्विस अकेडमी इस्लामाबाद और घाना फ़ॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के दरमियान ताउन पर मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। फ़रीक़ैन ने इस अज़्म का भी अदा किया कि इदारा जाती मुकालमे के इस अमल के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बामानी और मनसूबा जाती बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। इजलास में यह फैसला किया गया कि दो तरफा सियासी मुशावरत इजलास का अगला दौर आइंदा साल इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बुनियादी मरकज़ सेहत बखर में टेली मेडिसिन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत छोटी बीमारियों के इलाज मुआलजे के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को फ़ाल कर रही है और टेली मेडिसिन के जरिए मरीज घर बैठे डॉक्टर से राब्ता करके इलाज करवा सकेंगे। वज़ीर सेहत ने मज़ीद ये भी कहा कि बीमारियों से बचाव और काबू पाने के लिए अवाम में आगाही बहुत ज़रूरी है। हुकूमत बच्चों को 13 बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखे हुए है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हेल्थ केयर का मकसद सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं बल्कि आवाम को बीमारियों से बचाना है और इसके लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। टेली मेडिसिन सेंटर के इफ्तिताह से दूर दराज इलाकों में तिबी सहूलियात तक रसाई आसान होने की उम्मीद है, जिससे मरीजों को वक्त और पैसे की बचत होगी और सेहत के निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की सदारत में होने वाले आला सतही इजलास में फैसला किया गया कि हर ज़िले अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट और पेट्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने स्ट्रोक के मरीजों के लिए फौरी तौर पर टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने, स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के लिए नर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी हिदायत की। ज़िले अस्पतालों के डॉक्टर्स और फालिज के मरीजों के फौरी इलाज के लिए स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट से टेलीफोनिक रब्ता भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज़ को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। फालिज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुसल्लमा है। आगाही मुहिम को खुद लीड करूंगी। पेम्स के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कासिम बशीर ने स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 25 साल से ज़्यादा उम्र 4 में से 1 शख्स को फालिज का खतरा होता है। फालिज के प्री अस्पताल, अस्पताल और पोस्ट अस्पताल में केयर के लिए आगाही और ट्रेनिंग लाजमी है। पंजाब हुकूमत ने बसंत के दौरान मजहबी हमआहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक बसंत के दौरान मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर वाली पतंगों पर मुकम्मल पाबंदी होगी और किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों का इस्तेमाल भी ममनू करार दिया गया है। बसंत के दौरान 30 रोज़ तक मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, जबकि लाहौर में बगैर तस्वीर, यकरंगी और कसीर रंगी गुद्दा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है। महकमा दाखिला ने कहा है कि इश्तियाल अंगेज़ अनासर की जानिब से बसंत के दौरान मजहबी या सियासी अलामात का इस्तेमाल का अंदेशा था। इसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने 6 ta 8 फरवरी को महफूज बसंत की मशरूत तौर पर इजाज़त दी है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत बसंत 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। खतरनाक डोर, धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेप शुदा डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है और मुकर्ररा तारीख से कल पतंगबाजी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना या सजा हो सकती है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सानहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला ने कहा कि सानहा गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुँचाया है। सूबाई हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है और उसके मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेगी। इजलास को बताया गया कि 2012 में कायम होने वाली सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा सरमायाकारी की गई। कंपनी के फंक्शन तवानाई का महकमा कर रहा है, इसलिए कंपनी की ज़रूरत नहीं। सिंध काबीना ने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि हैदराबाद में पानी के मसले के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने दरख्वास्त की है कि बेल मेलानो में 6 मिलियन गैलन रोज़ाना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए 400 एकड़ अराजी मुख्तस की जाए। काबीना ने 400 एकड़ के बजाय 100 एकड़ जंगलाती अराजी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देने की मंजूरी थी। आलमी मंजरनामे में आपको खबर देंगे अमरीका से, जहाँ पर शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी और बारिश से 20 करोड़ से ज़ायद अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसस में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद 22 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मुल्क भर में 12,000 से ज़ायद परवासें मनसूख कर दी गई हैं। शिमाली डिकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, हिफाजती हिदायत पर अमल और हंगामी सूरत हाल में मकामी इदारों से रब्ता करने की हिदायत की है, जबकि रेस्क्यू और एमरजेंसी इदारे अलर्ट रहते हुए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई, ज़मीनी या बहरी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। UAE की वजारत ख़ारजा के मुताबिक न सिर्फ हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि किसी भी किस्म के लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी फराहम नहीं की जाएगी। बयान में कशीदगी में कमी, बातचीत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के पासदारी पर जोर दिया गया है। ये ऐलान अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सामने आया है। तालिबान रजीम के नाम नहाद ताज़ीरी सज़ा से मुतालिक दस्तूर को अफ़गान अवाम समेत दुनिया भर ने मुस्तरद कर दिया है। ताज़ीरी सज़ा से मुतालिक बाज़ाब्ता कानून जुल्म और शहरी आज़ादियों को दबाने का हरबा है।
افغان طالبان رجیم کے سزا سے متعلق ضابطے پر ملک کے اندر اور باہر سے آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے لیے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ریچرڈ وینٹ کے مطابق سزا سے متعلق دستور کے سنگین نتائج ہوں گے۔ افغان قومی سلامتی کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے سزاؤں سے متعلق دستور کو مذہب کا سیاسی استعمال اور سخت گیر قرار دیا ہے۔ آسٹریا میں افغانستان کے سفیر منیزا کا کہنا تھا کہ نیا ضابطہ آمرانہ نظریے کا آغاز ہے جو قانون کو انصاف کی بجائے سماجی کنٹرول کا ذریعہ ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سزا سے متعلق ضابطہ انسانی وقار، شہری مساوات اور قانونی انصاف کی بنیادوں کو پامال کرتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے دوران انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کو بے دردی سے روندا جا رہا ہے۔ سزاؤں سے متعلق اس افغانی رجیم کے ضابطے سے انسانی حقوق متاثر اور معاشرتی اور سیاسی ڈھانچہ شدید کمزور ہوگا۔ 27 جنوری 1994 کو کپواڑہ میں بھارتی قابض فورسز نے پرامن اور نہتے کشمیری شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 27 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ مظالم اس وقت پیش آئے جب کشمیری عوام نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کا بائیک آؤٹ کر کے بھارتی قبضے اور جھوٹی جمہوریت کو مسترد کیا تھا۔ سانحہ کپواڑہ میں زخمیوں کو طبی امداد سے محروم رکھا گیا اور مدد کو آنے والے شہریوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فوج نے تحقیقات سے انکار کر دیا اور 1997 میں مقدمہ بغیر کسی سزا کے بند کر دیا گیا۔ آج بھی متاثرہ خاندان انصاف کے منتظر ہیں۔ پاکستان مسلسل کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر نے کہا ہے کہ حکومت تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو مضبوط بنانا حکومت کی ترجیح ہے اور اداروں کی کارکردگی میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ نظام تعلیم میں شفافیت بہت ضروری ہے، اس لیے وزارت تعلیم کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں اور تمام ورکنگ ڈیجیٹل بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ وجیہہ قمر نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت کے جتنے بھی ٹینڈرز ہیں انہیں شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن کر دی گئی ہے۔ ان کے مطابق اس سے تعلیمی شعبے میں کرپشن کم ہوگی اور وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا، جس سے طلبہ اور اساتذہ دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تیسری گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ کانفرنس میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستان اس کا کہنا ہے کہ آئی ٹی، انجینئرنگ اور ہاسپٹیلٹی کے شعبے میں ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کو تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ گلوبل لیبر کانفرنس ہے، یہ اس کا تیسرا سال ہے۔ لاسٹ ایئر بھی ہم آئے تھے یہاں پہ اور میں نے دیکھا ہے اس سال نمایاں فرق ہے اور کئی سارے ممالک اس میں مزید ایڈ بھی ہو گئے اور جو وینیو ہے اس کا بھی سائز بڑا ہو گیا ہے۔ تقریباً 10,000 پلس لوگوں نے رجسٹر کیا ہے یہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم پاکستان کی جو لیبر ہے ہماری اس کو یہاں پہ پراپرلی شو کیس کریں اور یہاں پہ کمپنیز کو اور حکومت کو بتائیں کہ ہم کون سی اصلاحات کر رہے ہیں جن سے مزید بہتری آئے گی ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ہنر کے اندر، ان کی سافٹ سکلز کے اندر، ان کی تربیت کے اندر ہم کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اور یہاں پہ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ جو دوسری ممالک ہیں جس طرح فلپینز ہے اور دیگر ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی آئی ایس پی آر انٹرنشپ 2026 کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ شدت پسند عناصر بلوچستان کے حوالے سے جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے کے تحت مسلح گروہ بنا رہے ہیں جو مکالمے کی بجائے تصادم پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان عناصر کا مقابلہ کرنا ریاستی اداروں کا آئینی حق ہے۔ میرے سونے دلبر ہے جہاں میرے محبوب گشے سبحان پاکستان پاکستان ہے کرتے پیار ہم جس سے ہمیں جس سے محبت ہے اگر پوچھے جہاں۔ ہمارے کیس میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انٹروڈیوس ہوا۔ ہندوستان میں متحدہ صوبے تھے، اس کے ساتھ پرنسلی سٹیٹس تھی، 565 کے قریب تھے۔ انڈائریکٹلی دو ہی چوائسز ہیں کہ آپ آئیدر اپنی جغرافیکل پراکسیمیٹی کو رکھتے ہوئے یا پاکستان میں ضم ہو جائیں یا ہندوستان میں ضم۔ آزاد رہنے کی آپشن آپ کے پاس نہیں۔
पहले इन्होंने नॉन बलोच पॉपुलेशन इन सबको टारगेट किया, उनको खौफ और डर के मारे कि वो ये सूबा छोड़ दें। तो पहले तो ये समझें कि ये जवाब देने का जो इख्तियार और हक है वो लेजिटिमेटली हमारे इदारों के पास है और फोर्सफुली इनका मुकाबला करना होगा। ये कलेक्टिव रिस्पांस देंगे तो ये कम होंगे या खत्म होंगे। इस रीजन में अगर सिक्योरिटी सर्विसेज का कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। आप 8, 9, 10 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस बजट पे लगाते हैं, इंडिया अराउंड 80 to 90 लगा रहा है। ईरान को देख लें, चाइना को देख, किसी को देख लें, पाकिस्तान में सबसे कम पैसा लग रहा है। से पूछ लो चाहे सबका शजरा पाकिस्तान, ये सारे दिल के तगड़े तभी है तगड़ा पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की इब्तिदा हुई 2 स्कूल थे, खालसा स्कूल और इस्लामिया स्कूल क्वेटा में। आज हजारों स्कूल हैं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज 20 यूनिवर्सिटीज हैं। एक सिविल अस्पताल था पूरे सूबे में, आज 100 से ऊपर अस्पताल हैं। बिजनेस कम्युनिटी में लोग डेवलप हो गए हैं। अब ये बात दूसरी साइड को भी समझनी होगी और अगर तिजारत होगी तो तिजारत कानूनी तरीके से। इस वक्त वहाँ पर एक इलिसिट इकोसिस्टम जो है ना, जिसको स्मगलिंग को कारोबार कहा जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाए, जो भी एक्टिविटी करनी है उसका एक फ्रेमवर्क हो। इट विल डाउन द लाइन बेनिफिट द पीपल इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में कराची के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, सेफ सिटी मनसूबे और निगरानी और कैमरों के तनसीब पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची पाकिस्तान के माशी शाहरग है। शहर में अमन अमान का तसलसल हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद निगरानी वाले कैमरों को तनसीब नागुज़ीर है। एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने कहा कि पुलिस के इस्तेदाद कार में इजाफे और मौसर पॉलिसिंग के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। 2 से 8 फरवरी तक मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसके दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस दौरान 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स आवाम के दरवाज़ों पर दस्तक देंगे ताकि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कतरे पिलाए जा सकें। तर्जुमान नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम का मकसद कौम के मुस्तकबिल को उम्र भर की माजूरी से महफूज बनाना है। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग में नुमाया पेशरफ्त की है, मगर खतरा अब भी मौजूद है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि अपने दरवाजे खोलें, पोलियो वर्कर्स का खैर मकदम करें और अपने बच्चों को महफूज बनाएं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया। यौम स्याह के मौके पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की जानिब से एक वेबिनार भी मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने की, जबकि साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। शुरका ने वेबिनार से खिताब में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। शुरका ने कहा कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुख्तलिफ मज़ाहब के पैरोकारों और हत्ता के निचली ज़ात के हिंदुओं के खिलाफ भी जो इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए और भारत पर संगीन इक़्तिसादी सफारती पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके चागी में पाक ईरान सरहद के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। इस हवाले से आपको बताएंगे। अभी आपको आगाह करें कि उकाड़ा ज़राई पैदावार ख़ासतौर पर दूध, गंदम, चावल और आलू के हवाले से मुल्क भर में मशहूर है। यहाँ के किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, लीमू और ग्रेप फ्रूट अपनी रंगत और जायके के एतबार से एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। उकाड़ा ज़राई पैदावार ख़ास तौर पर दूध, गंदम, चावल और आलू के हवाले से मुल्क भर में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। रवायती फसलों के साथ गैर रवायती फसलों की काश्त के रुझान से तुशावा फलों की काश्त में इजाफा हुआ है। इस वक्त ज़िला भर में 2000 एकड़ पर किन्नू के बागात हैं। उकाड़ा के बागात सरगोदा के बड़े सिट्रस बेल्ट के बाद पंजाब में किन्नू की पैदावार के लिए अहम शुमार किए जाते हैं, जिनकी सालाना पैदावार 16,000 मेट्रिक टन है। जी मेरा 20 एकड़ पर किन्नू का बाग है। मेरे पास दूसरे शहरों से लोग आते हैं, इसे खरीद के वो दूसरी मंडियों में जा के इसको बेचते हैं, अच्छा मुनाफा हो जाता है। पाकिस्तान किन्नू की 17 लाख टन सालाना पैदावार के साथ दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है, जिसकी कुल पैदावार का 95% सूबा पंजाब में पैदा होता है। उकाड़ा का किन्नू, मौसमी, फ्लूटर, लीमू और ग्रे फ्रूट अपनी रंगत और जायके के एतबार से अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैं उकाड़े से अच्छी बड़ी किन्नू है, मिठी है, मैं खरीद के बाद दूसरी मंडियाँ बेच रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे मुनाफा भी देता है। उकाड़े का किन्नू बहुत अच्छा है, हम इधर से खरीद के बाहर मंडियों में लेके जाते हैं,
जा के बेचते हैं, बेच के हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उकाड़ा के बागात से आला म्यार के रसीले और जायकादार किन्नू की भरपूर पैदावार हासिल की जाती है, जिसकी कटाई और पैकिंग के बाद न सिर्फ मुकामी मंडियों में बल्कि मुल्क की दूसरी मंडियों तक भी पहुंचाया जाता है। किन्नू की काश्त से मुकामी लोगों को कटाई, पैकिंग और मार्केटिंग के शोबों में रोजगार के साथ किसानों को भी खातिर-ख्वाह आमदनी हासिल होती है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ओकाड़ा। स्पोर्ट्स न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप जारी है। मेहमान टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। वार्म अप सेशन के बाद खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच में शिरकत की। कोचेस की जानिब से खिलाड़ियों को क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए और मैच के इख्तिताम पर कोचेस ने सुपर ओवर भी करवाया। सुपर ओवर में बॉलर्स और बैटर्स को अहदाफ दिए गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज सुपर 6 मरहले में ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। हरारे में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की जानिब से मार्को विलियम और ह्यूगो बॉग ने इनिंग्स का आगाज किया तो विलियम सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। सुपर 6 मरहले के आज के दूसरे मैच में ग्रुप 2 से ही जिम्बाब्वे और भारत की टीमें बुलावायों में मद्दे मुकाबिल हैं। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया है। बुलावायों में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करते हुए 38.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई। रिफत बेग 31 और अब्दुल्ला 25 रन के साथ नुमाया रहे। इंग्लैंड की जानिब से सेबेस्टियन मॉर्गन ने 3 विकेटें हासिल की। रॉल्फी एल्बर्ट और मानी लोमैंसन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। इंग्लैंड ने 137 रन का हदफ 24.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान थॉमस रियो 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। बेन मेज ने 34 और बेन डॉकिंस ने 27 रन स्कोर किए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। There he goes again. The cross swept it away. And these are the winning runs as Caleb Falconer hits it for. हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में खेलता पंजाब के तहत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें बहावलपुर डिवीज़न के मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा और तलबात ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद तफसील बता रही हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला मुख्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात में हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए बहावलपुर डिवीज़न के तलबा और तालिबात में खेलों के मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में बहावलपुर डिवीज़न के तीनों अजला रहीमियर खान, बहावल नगर और बहावलपुर के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। इस मुकाबले में दौड़, लॉन्ग जंप, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कीरत, नात और तकरीरी मुकाबलों समेत दीगर मुकाबला जात शामिल हैं। इवेंट का मकसद तलबा में खुद एतमादी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करना है। बच्चों ने तमाम मुकाबलों में निहायत आला खेल का मुजाहिरा किया और अपनी अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश की। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूलों के तलबा कल के एक बैनुल अक़वामी मयारी खिलाड़ी साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसका जो सारा क्रेडिट है वो हमारी CM साहिबा और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की टीम और उसके अलावा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जाता है। CM मरियम नवाज ने जो ये खेलों का हमारे तालीम के साथ ऐड किया है, इससे हमारा तालीम भी आगे बढ़ेगी और हमें तरक्की भी हासिल होगी। इस तरह के मुकाबला जात होते जाने चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी CEO एजुकेशन तवक्कुल हुसैन ने मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। इस तरह के मुकाबलों से जहाँ बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो सकेंगे तो वहीं खेलों को फ़रोग़ देकर सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर।
नाज़रीन, टेनिस की दुनिया के आलमी नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मेलबर्न में खेले जा रहे ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में ज़वेरेव ने अमेरिका के लर्नर टाइन को सख्त मुकाबले के बाद 4 सेट्स में शिकस्त दी। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने टाइन के खिलाफ 6-3, 6-7, 6-1 और 7-6 से कामयाबी समेट ली। बांग्लादेश को बाहर करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप को मुतनाज़ बना दिया है। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की गई। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूली पर मबनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेट की सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए स्कॉटलैंड को मुतबादल टीम के तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। भारत में फैलने वाले खतरनाक वायरस ने T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में डाल दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 को भारत में नए नीपा वायरस के फैलने के बायस खतरात का सामना है, जिसने इस मेगा इवेंट के इनेकाद पर सवालात उठा दिए हैं। भारत के मगरबी बंगाल में 2 नर्सेज और 1 डॉक्टर समेत 5 अफराद में नीपा वायरस की तस्दीक हुई है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हुकाम ने कम से कम 100 अफराद को क्वारंटीन में भेज दिया और हिफाजती तदाबीर मजीद सख्त कर दी हैं। ये खतरनाक वायरस 7 फरवरी को शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से चंद हफ्ते पहले ही फैलना शुरू हुआ है। अगर वायरस की शिद्दत में इजाफा होता है तो इससे इवेंट की तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी इंतजामात पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। खेल का अहवाल आपने जाना, अब आपको ले चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा PTV न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त